بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں چیئرمین جمال ٹاکو اور آغا حسن سید اپنا جو فورم ہے ہمارا اس کا ایک چھوٹا سا حصہ پیش کرنے لگا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس فورم کو غور سے سنیں۔ 15 سال پہلے ہم نے تمام تر فورم تیار کیا تھا، مگر اس کے کچھ حصے جو ہیں وہ میں پاکستانیوں سے جتنے بھی پاکستانی دنیا میں رہتے ہیں ان سے اپنا جو ہمارا پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ قائم کا فورم ہے اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد پھر آغا حسن سید اور میری اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور جو بھی اس فورم میں بولا جائے گا اس رمضان کے دور میں وہ آپ یقین رکھیں کہ وہ ہم اس کو ضرور کریں گے۔ تو میں اس فورم کو پڑھتا ہوں، آپ لوگ اس کو غور سے سنیں۔ جو پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ قائم نے کرنا ہے پاکستان میں آنے کے بعد، میں چیئرمین پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ قائم اور پریزیڈنٹ آغا حسن سید پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ قائم کہتے ہیں کہ عزیز ہم وطنوں، ہم نے عوامی انقلاب کی بنیاد رکھ دی ہے، 15 سال سے چلی آ رہی ہے۔ پاکستان کا ہر شہری اس انقلاب کے سمندر کی تنو تیز موج ہے، جو ہر اس شخص کو جس نے گزشتہ 71 برسوں میں ملک کو کسی بھی شکل میں نقصان پہنچایا ہے غرق کر دے گا۔ ہر پاکستانی اس انقلاب کے سیلاب کا طوفانی بہاؤ ہے، جو اپنی عوامی قوت اور روز سے کا ناجائز فائدہ اٹھایا ایسے تمام عناصر کو بہا کر لے جائے گا جنہوں نے اپنے عہدوں، مناصب اور عیاشیوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا، جس کے باعث امیر امیر ترین اور غریب غریب ترین ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد سیاستدان، کرپٹ حکومتی اہلکار ہوں یا زرد صحافت کے علمبردار، تاجر، صحافی، ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچانے والے کاروباری طبقے ہوں یا جاگیردار اور غنڈہ عناصر، عوامی انقلاب سب کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ ملک دشمن بدعنوان عناصر کو سر عام پھانسیوں پر لٹکایا جائے گا اور ایک نئی رقم تاریخ کی جائے گی۔ موقع پرست سیاستدانوں اور قوم دشمن سیاسی جماعتوں اور نیم سیاسی تنظیموں کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے گا۔ غنڈہ عناصر کا کلا کما کیا جائے گا، بڑے چھوٹے کا فرق مٹا دیا جائے گا۔ انصاف سستا اور آسانی بنیادوں پر فراہم کیا جائے گا، ناانصافیوں کا خاتمہ کیا جائے گا، بیرونی
بیرونی ملک اہم وطنوں کو تحفظ فراہم کیا جائے گا، طلباء کو ہر قسم کی سہولت دی جائے گی، ملک امور میں غیر ملکی آقاؤں کا عمل دخل ختم کیا جائے گا۔ تو میں کہہ رہا تھا انصاف سستا اور آسان بنیاد پر فراہم کیا جائے گا، ناانصافیوں کا خاتمہ کیا جائے گا، بیرونی ممالک میں وطنوں کو تحفظ فراہم کیا جائے گا، طلباء کو ہر قسم کی سہولت دی جائے گی، ملک امور میں غیر ملکی آقاؤں کا عمل دخل ختم کیا جائے گا، خواتین کو عزت، تکریم اور تحفظ ملے گا، قانون کی بالادستی ہوگی، امیروں ٹیکس چوروں سے ملکی خزانے سے لوٹی گئی رقم کا بلا لحاظ حساب لیا جائے گا، ناجائز جائیدادیں، دھن دولت ضبط ہوں گی، زندگی کے ہر شعبے سے متعلق بد کردار اور بد عنوان افراد کا محاسبہ کیا جائے گا، عوامی انقلاب ہر اس شخص کو پھانسی اور گولی دے گا جس نے کسی بھی شکل میں ملک کو نقصان پہنچایا ہوگا، عوامی انقلاب پاکستان کی نئی نسل کی روشن مستقبل کا انقلاب ہوگا، نئی نسل فرسودہ اور آزمائے گئے سیاسی و نیم سیاسی عناصر اور جرنیل شاہی کو مسترد کر دیا جائے گا، اور مسترد کرتے ہوئے پاکستان کی بنیاد رکھی جائے گی، جہاں ہر کوئی صرف پاکستانی ہوگا، جہاں ہر کوئی پاکستانی ہوگا، ون یونٹ پاکستانی، صوبائیت ختم کر دی جائے گی، صوبائیت ختم کر دی جائے گی، جہاں ہر کوئی صرف پاکستانی ہوگا، بلکہ صرف پاکستانی ہی ہوگا، پاکستان کی نئی نسل عوامی انقلاب کے ذریعے اپنے لیے مستقبل اور نئی روشن راہوں کا انتخاب کرے گی، عوامی انقلاب ایک نئی تاریخ رقم کرے گی، انڈسٹریاں لگیں گی، ہسپتال بنیں گے، تعلیمی ادارے قائم ہوں گے، ٹیکنیکل ادارے بنائے جائیں گے، زراعت کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا، نوکرشاہی اور حکومتی آقاؤں کو عوام کی غلامی میں دیا جائے گا، ہر شخص کو روزگار اور ہر بے روزگار کو بے روزگاری الاؤنس دیا جائے گا، ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا جائے گا، ملکی خزانے سے لوٹی گئی دولت واپس لے کر ملک کی ترقی پاکستان کو مقصد پہ خرچ کرے گا،
اس کے علاوہ اقلیتوں کو عزت نفس کے ساتھ جینے کا موقع ملے گا. ہر بوڑھے پاکستانی کو پینشن دی جائے گی. معذوروں کے لیے سہولیات و امرات کا انتظام کیا جائے گا. پاکستان کی تعمیر و نو ہمارا نصیب العین ہے. پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ کا میں نے چھوٹا سا ایک حصہ فورم کا پیش کیا ہے. جو پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پائم چیئرمین جمال ڈاکو اور پریزیڈنٹ آغا حسن سید ان وعدوں کو پورا کر کے رہیں گے انشاءاللہ. اب مجھے کچھ اور باتیں بھی کہنی ہیں، مگر میں اس وقت آغا اعظم سید کو جرمنی میں ملا رہا ہوں اور وہ اس کے اوپر مزید تبصرہ کریں گے. کیا حال ہے حسن؟ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی میں نے پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پائم کا ایک حصہ مشہور کا آن ایئر بھیج دیا ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی رہتے ہیں وہ اس کو سن لیں. بالکل ٹھیک ہے بھائی. اور اب آپ کے اوپر ہے، اگر کوئی بات کرنی ہے تو آپ جو ہے اس کو مزید کنٹینیو کر سکتے ہو. آن ایئر ہے، سب لوگ سن رہے ہیں. اس میں آپ نے یقینا ذکر کر دیا ہوگا بوڑھوں کا، عورتوں کا، حقوق کا. بوڑھوں کا کیا ہے نا، اس میں کر دیا، اس میں تھا، اس حصے میں ہے نہیں. تمام کا تمام. میرا مطلب ہے پہلا حصہ جو ہے اس کو آن ایئر کر دیا میں نے. ٹھیک ہے. نہیں، میرا مقصد یہ کہ مجھے اس میں نہیں یاد نا کہ وہ فرسٹ اس میں کیا تھا. تو اس میں خاص طور پہ کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہے عورتوں کے خلاف، جو بہو، بیٹیاں، بہنیں، مائیں ایک انتہائی تکلیف دے. یاد ہے آپ کو، میں نے آپ سے دن میں بھی ذکر کیا تھا. اس کو دیکھ کے بہت تکلیف ہو رہی تھی کہ کس قدر گر گئے ہیں. یعنی ایک واقعہ ہے جس میں بہو کو بچے سمیت 8ویں منزل سے پھینک دیتے ہیں. ایک واقعہ ہے جس میں ایک بہو کو اس کے ہاتھ اور کی ناڑیں کاٹ دی، اس کی نسیں کاٹ دی. ایک حصہ ہے عمر کی، شاید میرا خیال ہے. اور ایک قصہ ہے جس میں ایک شخص نے ایک لڑکی کو 23 وار کیے. اب اس کے بارے میں بات کروں گا آگے چل کے. اور چھری کے. اس کے علاوہ ایک حصہ ہے جس میں بیٹوں نے ماں کو کچرے میں پھینک دیا. اب سوچیں، یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے جس کے لیے فوجیں جنگیں لڑتی ہیں، جس کے لیے ہم جیسے لوگ جدوجہد کرتے ہیں. یہ اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے، جن کو اپنے رشتوں کی پرواہ نہیں ہے، جن کو اپنے رشتوں کا لحاظ نہیں ہے، جن کے آگے کسی قسم کی کوئی بیریئرز نہیں ہے، کوئی حدیں نہیں ہے کہ وہ رشتوں کے تقدس کو پامال ہونے سے نہیں روک سکتے یا روکتے، بلکہ اس کی حدیں پار کرتے ہیں. سب سے زیادہ جو ضروری ہے اس وقت ان حالات میں، ایک بچی کو وہ لے جا کے وہاں اٹلی سے لے جا کے وہاں قتل کر دیا. یہ چاہے پاکستان
امریکہ میں رہتے ہوں چاہے یورپ میں رہتے ہو، جرمنی میں ماں باپ نے ایک بچی کو اپنا تکیہ رکھ کے اس کو مار دیا، 20-22 سال کی تھی، 23 سال کی. تو یہ لوگ جو ہیں اس قدر بربریت کریں. ایک جگہ پہ دیکھا میں نے کہ ایک عورت کو بالوں سے پکڑ میں کس طرح سے اس کو کھینچ تان کے مار رہے ہیں. پھر ایک عورت کو جو ہم نے ریکویسٹ کی تھی اس کی دادرسی کی جائے. تو عورتوں کے لیے خاص طور پہ ہمارے منشور میں ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کڑی ترین شکے رکھیں گے اور ان کا جو ہے ان کو مکمل تحفظ دیں گے. صرف زبانی کلامی نہیں، پریکٹیکلی ان کے لیے ٹاسک فورسیں قائم کی جائیں گی. اسپیشلی ان کے ساتھ زیادتی، آفس میں ہراسمنٹ، سیکسول ہراسمنٹ، ویسے زیادتیاں، گھروں میں زیادتیاں، جہاں بھی ہوگا ان لوگوں کو یہاں یورپ سٹائل میں ان کی ایک کال کے اوپر ٹاسک فورس پہنچے گی اور ان کی دادرسی کرے گی. یہ ہم نے کرنا ہے اور یہ ہم ضرور کریں گے. دوسرا بزرگوں کے لیے کریں گے. بزرگ اس لیے مار کھاتے ہیں، اس لیے مائیں کچرے کے ڈھیر میں پھینک دی جاتی ہیں کہ ان کے پاس وہ بچوں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں اور ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ان کا کوئی پیسے دینے والا نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی کمائی نہیں ہوتی. اور وہ جو ہے جب لڑکے جو کہ چٹو ہوتے ہیں، جن کو میں ذلیل ترین لفظوں میں یاد کرتا ہوں، وہ لوگ اپنی بیویوں کی ٹانگوں کے بیچ میں گھس کے اپنی ماں کی جس کی ٹانگوں سے نکلے ہوتے ہیں اس کی بے حرمتی کرتے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم بزرگوں کے لیے وظیفے مقرر کریں گے. آپ نے اچھا کیا ہے کہ یہ ذکر کر دیا اس کو، منشور کو یہ ریکارڈ رہے. اس میں سے بہت ساری چیزیں لوگوں کو شائبہ ہوگا، بہت ساری چیزیں چور پارٹیوں نے لی اور انہوں نے اس کو نافذ کرنے کی بھی کوشش کی، اپنے منشور کا حصہ بنانے کی بھی کوشش کی. لیکن لوگ یہ یاد رکھیں کہ یہ ہم 2004 سے کہہ رہے ہیں، آن پیپر ہے، جس کو جو کہ ہمارے پاس ریکارڈ میں محفوظ ہے اور میڈیا کے پاس بھی ہے. تو یہ ہم ان کو پینشن دیں گے، ان کو وظیفے دیں گے اور ان کو قانونی تحفظ دیں گے. بزرگوں کو بھی، ہر بزرگ کو پینشن ملے گی، چاہے وہ کسی سرکاری ادارے میں تھا یا نہیں تھا، سب کو ملے گی. یہ ہمارا وعدہ ہے، کیونکہ ہم نے گورنمنٹ کے جو فاضل اخراجات ہیں، جو عیاشیاں ہیں، جو عللے تللے ہیں، جو ان کی بدماشیاں ہیں، جو ان کی رنگ رلیاں ہیں، جو ان کی محفلیں ہیں، جو ان کی وہ ہیں، تو ان سب کو ہم نے روکنا ہے. جو کہ اسمبلیوں کے ممبر بن کے، وزیر بن کے، گورنمنٹ کا حصہ بن کے یہ لوگ کرتے ہیں اور ان پہ کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے. ابھی یہ نیا ڈرامہ پھر شروع کر رہے ہیں. ایک تو الیکشنز کے اوپر بے تحاشا پیسہ لگتا ہے، وہ لگے گا، بے تحاشا حد سے زیادہ پیسہ لگتا ہے. اور ایک طرف جو ہے دوسری طرف اسمبلیوں کے اخراجات ہوں گے. جب اسمبلیاں وجود میں آئیں گی تو ان کے جو اخراجات ہوتے ہیں فی ایم این اے 15 لاکھ میں کم سے کم پڑتا ہے یا 20 لاکھ میں پڑتا ہے پر منتھ. صوبائی والا جو ہے وہ بھی اتنے میں ہی پڑتا ہے. اس کے بعد اسمبلیوں کے خرچے، ان کے ڈی اے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، بہت ساری بھائی آتی ہیں. یہ ہم لوگ کیونکہ کسی نے پوچھا تھا پائم الیکشنز میں حصہ لے گی، تو آج طرف سے جواب کیا تھا کہ پائم الیکشنز میں حصہ نہیں لے گی، کیونکہ پائم الیکٹورل سسٹم پہ نہیں رکھتی، یقین نہیں رکھتی، الیکٹورل سسٹم کے خلاف ہے، جمہوریت کے خلاف ہے، سو کالڈ جمہوریت کے خلاف ہے، جس میں لوگ تو تکلیف میں ہیں مگر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں فائدہ اٹھاتے ہیں جو عوام کے ووٹوں سے جاتے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ کہ یہ بات ایک بالکل واضح ایک دفعہ پھر ہم کر دیں کہ پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ جو ہے وہ انقلابی پارٹی ہے. یہ اس کا جمہوریت اور جمہوری جو تسلسل اور سلسلے ہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ انقلابی پارٹی ہے. انقلاب میں اسمبلیاں نہیں ہوتی، انقلاب میں اور اس طرح کے للے تللے نہیں ہوتے. انقلاب میں کچھ ایسا سسٹم ہوتا ہے جیسا سعودی عرب میں ہے. تو یہ ایک ایسا سسٹم ہم رائج کریں گے. ویسے بھی وہ قوم جو ہے ڈنڈے کی اتنی عادی ہو چکی ہے کہ اس کو تھوڑی کھول دی جائے تو یہ مادر پدر آزاد ہو جاتی ہے. پھر جو قوم اس نیت پہ چل پڑی ہے کہ جو اپنے خون کے رشتوں کو پامال کر رہی ہے، جو اپنے خون کے رشتوں
बिना कि ये जो है ये एक माँ का भी रूप है या जिसका एक तकद्दुस है और बेटी का भी है अपने घर में भी। जिस समय एक साथ देख रहा था एक बंदा जिससे मैंने पहले भी जिक्र किया था, बुढ़ा हो के भी वो एक बच्ची को गलती से उसको चोरी वोरी की छोटी मोटी उसको पकड़ पकड़े बालों से तो उसको बेइज्जत कर रहा है। मैं सोच रहा था बुढ़ा, इसकी बीवी होगी घर में, इसकी बहुएं होंगी, इसकी बेटियां होंगी, पोती पोतियां होंगी, कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है और कोई लिहाज नहीं है कि वो तेरी पोतियों की उम्र की बच्ची है, उसके सर पे दुपट्टा रख और उसको बोल बेटा तूने ये किया है, गलत किया है, तुझे जरूरत है, तेरे घर में क्या मसला है, अपने पास से 4 पैसे दे उसको और उसको बोले कि उसको समझाए, ये करे ना कि जिस से तमाशा बनाते हैं। तो हमें ये बहुत हमारा इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसके बीच में मैं यहाँ पे एक बात और जिक्र करूंगा कि ये इस कदर शैतान माशरा बन चुका है, इस कदर शैतान है ये लोग, ये हर बंदा जो है लूली पकड़ी है कहाँ मोरी मिले डाल दूं, ये वो हरामी बन चुके हैं। ये औरतों को गलत बोलते हैं। ये हमारा नहीं है, दिस इज नॉट आवर मैटर, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा पॉलिटिकल है इसलिए मैं इसका जिक्र करूंगा कि रेहाम खान ने जो किताब लिखी उसके ऊपर मैं हैरान हो गया हूं कि कितनी दुनिया उमड़ आई है एक शैतान को फरिश्ता साबित करने पे, एक शैतान वाले माजी के बंदे को फरिश्ता साबित कर रहे हैं। उस औरत को मुसलसल गलत बोल रहे हैं। उस औरत ने कहा कि इमरान खान का बेटा मुझसे सेक्सुअल ताल्लुकात बनाना चाहता था। हम यकीन करते हैं वो ठीक कह रही होगी, 100%, बिल्कुल, विदाउट एनी डाउट। फिर उसने कहा इमरान के बारे में कि वो किसी बात पे जब नाराज हुआ तो कमरे में आके उसने पाउडर से हेरोइन की 3 लकीरें बनाई और उसको नाक में सुड़क गया। ये इंतहाई हाई लेवल की हेरोइन गिरी होती है, पीना होता है या सूंघना होता है या जिसमें डालना होता है, ये बहुत हाई लेवल होता है। यदि उसका लेवल होता है कि थोड़ी लेवल के बहुत हाई लेवल की ड्रग, बहुत हाई लेवल की ड्रग का बंदा है, सब जानते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बेगैरत लोग, इसकी पार्टी के बेगैरत लोग जो है वो एक फरिश्ते को जो है एक शैतान को फरिश्ता बनाने पे तुले हुए हैं और एक औरत को मुसलसल गलत बोल रहे हैं। उस औरत ने जितनी बातें जहां तक मुझ तक पहुंची हैं, मुझे 100% लगता है वो ठीक कह रही है, वो गलत नहीं कह रही होगी। लालची होगी, कौन लालची होता है? पैसे का लालची तो ये तो वो सलमान जैसा टट्टू टके का बंदा नहीं है। सलमान चूतरों में मारो ठुड्डे इसके, ना इनकी आवाजें होती है, ना इनके चूतरों से पद सही तरह से निकलते हैं, ना इनके मुंह से आवाज सही तरह से निकलती है। फड़वों की जाके बन जाते हैं। आतिफ असलम जैसे तो इब्रारुल हक जैसे टट्टू किन्ने किन्ने जाना है बिल्लो ने कहा आ जाता है जैसे साइकिल दे होते जैसे 3rd क्लास गाने गा के ये कुत्ते बन जाते हैं, बड़े सेलिब्रिटी गाने वाले। ना इनकी आवाज होती है, ढोल बंद कर दो, म्यूजिक बंद कर दो, लगेगा कोई कंजरी जो है बैन कर रही है। इनकी आवाजें ऐसी होती है हरामजादों की, लेकिन वो इतने ढोल ढमके चला रहे होते हैं, आवाज भी दबी होती है। और ये हमारी कौम ना रे हमारी जी, ये बड़ा जबरदस्त गुलकार है बोबड़ी का सलमान अहमद जैसा टट्टू गाने वाला जिसकी आवाज को नहीं तो ठुड्डे मारो साले को। पर मतलब ऐसी बात निकलाती है तो मैं दिमाग से चले जाता है। वो बोल रहा है, वो उसने बयान दिया रेहाम के खिलाफ। अब जो बोल रहा था सुन लो कि इसमें कहाँ पे मुझे सदाकत नजर आए कि कोई सदाकत है इसके अंदर, तो वो उसकी बातों में वजन ही कोई नहीं है, उसकी बातों में वजन ही कोई नहीं। किसी बात से नहीं लग रहा कि रेहाम खान साहबा जो है वो जो है डुल गई और लुट गई और यानी जो लोग वोटे करने की कोशिश कहीं उसकी बात से लगा, लेकिन वो अपनी बातों उसको बोलने को नहीं था। बट दे आर determined to prove that she is a bitch. इसी तरह अब तक ओम चौधरी साहब हैं जो लड़कियां सप्लाई करता है इमरान को, ये इसके सप्लायर्स हैं, टके का लौंडा निकला हुआ है, वो सब इसके औरत सप्लायर हैं। ये जो मैंने सुना है वो लामा इकबाल का नवासा है, वो भी लड़कियां इसको लाकर देते हैं, इकट्ठे बैठकर बिचड़ते हैं। मेरे पास सारे सदकात लाए हैं, लेकिन क्या है कि सारे निकल आए हैं। हैरत होती है, इस कौम को तो फना हो जाना चाहिए, इनको बर्बाद हो जाना चाहिए। ये लोग किसी तरह से भी इस लायक नहीं है कि ये इस धरती पे जिंदा रह सके। जो लोग एक डिक्लेयर्ड, एक ओपन, एक बिल्कुल क्लियर विजन के साथ नजर आ रहा है कि एक आदमी का किरदार इतना सया है कि उसके अंदर एक हल्का सा सफेद डॉट भी डालो तो वो उभर के सामने आ जाए, और ये उसको फरिश्ता साबित कर रहे हैं। और
उस औरत को गलत साबित कर रहे हैं। ये बात मैं कहना चाहता हूं वाज़ेह तौर पे कि जो जो खड़पंचू और जो जो टट्टू, जो जो इसका दलाल है और पिंप है, औरतें सप्लाई करने वाले बिहाइंड द ब्लडी वॉल्स, ये लोग जो हैं ये अच्छी तरह से जान लें कि तुम लोग सच्चाई को रोक नहीं सकते हो। उस औरत ने जो लिखा है, तुमने कहते पैसे की लालची है, सही है कि साबित करो उसे किसी पैसे मांगे, साबित करो। ये उसके अपने साथी बोले से मुझे पैसे मांगे, अलीम खान मेरे से पैसे मांगे, वो कहते हैं डड्डू का गोवा, पता नहीं क्या होता है वो, किसका गोवा डड्डू। तो मतलब ऐसे जो है ना अपने बंदे जो है लगे हुए बोल रही है। तो मेरा मकसद सिर्फ कहने का ये है कि ये ऐसी औरतों से बात निकली तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये वो माशरा है कि वो इस कदर मर्दों की हराम जबकि आपस में चेंड है, ये लोग इंटरकनेक्टेड है। ये औरत को चाहते ही नहीं है कि मतलब वो औरत जो है उबर के सामने आए, उसको एक मिनट में इकट्ठे हो जाते हैं, कुत्ते की तरह, भेड़ियों की तरह वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो जो वो होते हैं, और उस पे पिल पड़ते हैं, जिस तरह वो सब हम पिल पड़े। लेकिन लोगों की शऊर है, वो जानते हैं कि वो सही कह रही है, गलत कह रही है, और इमरान का क्या करैक्टर है, जो मर्जी बोलते हैं। मकसद मेरा सिर्फ कहने का ये, जब एक कौम इस लेवल पे गिर जाए कि एक नंगे को नंगा ना कहे, बल्कि कहे ये पोशाक वाला बंदा है, वो नंगा बैठा हुआ है बंदा, और दुनिया के नहीं तुम नजर नहीं आए, तुम इसे पोशाक पहनी हुई है, तो फिर इस लेवल के बाद कुछ बचता नहीं है। इस कौम को फिर बर्बाद होना नविश्ता दीवार बन जाता है। जो ये हो रहे हैं, जो ये लोग हो रहे हैं इस वक्त, जो निगरान वज़ीर आज़म बना है, वो मैं किसी देख रहा था कि वो वज़ीर आज़म बनते ही सरकारी चॉपर लेके अपने माँ बाप की कब्र पे चला गया। उन्होंने कहा जी इस पे 60 लाख रुपया खर्च हुआ, अभी तो इसकी एंट्री हुई है तो 60 लाख इस दौरे पे खर्च हुआ है। गवर्नमेंट के वसाइल से हेलीकॉप्टर का उसमें खर्चा है, चॉपर का और दीगर से खर्चे मिला मिलकर का 60 लाख में ये बंदा ये दौरा पड़ा है। तो मैं कह रहा था कि जब तुझे पता था, 4 दिन पहले पता चल जाता है कि तू नॉमिनेट हो गया प्राइम मिनिस्टर के लिए भोसड़ी के, तो तू जो है अपने माँ बाप की कब्र पे 2 दिन पहले चले जा, ताकि प्रोटोकॉल के पैसे खर्च ना हो। नहीं पहननी है, सिल्वर कलर की कोटी पहनी, दस्ती लगाते हैं, क्या नाड़ा बांधना है, नाड़ा सोने का होना चाहिए, शलवार जो है रेशमी होनी चाहिए, कोटी जो है वो यूनी चाहिए। मैं ब्लाडी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा हूँ भोसड़ी के, वहां से तुम चौपर लेके चले जाते हो, तो तुम्हारा जाती मामला है। तुम 2 दिन पहले जा सकते थे अगर तुम इस मुल्क के हमदर्द थे, तो मगर तुमने खर्चा किया। मैं एक बात कह रहा हूँ, ये बात से बात निकलती है। बिल्कुल सही। तो ये लोग जब इस तरह के लोग इनके ऊपर नाजिल होते हैं तो ये ठीक नाजिल होते हैं। अब ये चाहते हैं कि अब एक माना परमन्ना जो वुमनाइजर है वो इस मुल्क पर रूल करे, उसको ये फरिश्ता साबित करे। कह रहे उसकी ऑनेस्टी, उसकी रेपुटेशन, उसकी रेपुटेशन की तुम बात करो, इमरान की रेपुटेशन की बात करें, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। कौन सी रेपुटेशन की बात करो? रेपुटेशन होती नहीं है। रेपुटेशन का मतलब पता है? उसकी रेपुटेशन पे, उसकी ऑनेस्टी पे, उसकी पता नहीं किस किस चीज पे जिसने वार किया है, ये ब्लडी वेल, ये लोग पता नहीं कहां से सोचते हैं, इनके दिमाग है कि नहीं है, इनके दिमाग टांगों के बीच में है। बराबर ऐसी बात चल पड़ी थी, तो शर्म आ रही थी मुझे कि ये लोग इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं। तो उसके अलावा जो है ना कुछ और चीजें जैसे, हाँ देखिए हमने चंद दिन पहले कहा था, वाश काफी फाज में दुनिया जानती है, जिन्होंने देखा है, हमने इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बात की थी, जब ये अबासीज की इफ्तिताह करा दी थी, इन्होंने डबल पैसा लगा दिया, मगर बड़ा अच्छा एयरपोर्ट बन गया है ये, वो मैंने कहा था इसको पैसा पहुंच गया, तू खड़ा होकर बोल रही है तारीफ कर। इसकी बारिश हुई है, वो दरिया बन गया, दफ्तरों में पानी, पार्किंग में पानी, पता नहीं कौन सा दरिया बना हुआ है। कैन यू बिलीव दैट? रनवे पे पानी, वो जो बैंगर्स है वहां पानी है, और अनबिलीवेबल 110, मैंने मालूम किया एग्जैक्ट फिगर, 110 अरब रुपए से ये इन्होंने बनाया है, या डॉलर है या अरब है, रुपया है, जो बनना था 50 या 60 या 65 अरब में बना था, 110 अरब में बनाया है। और बनाया क्या है, पहली बारिश में उसका पूरे का पूरा जनाजा निकल गया। अब कोई पकड़ने वाला है, कोई पूछने वाला है? फिर कहते हैं कि इलेक्शन
बांधेंगे, एक दूसरे के ऊपर गुनाहों पे पर्दे डालेंगे? कौन से इलेक्शंस? इनको समझ नहीं आती। कह रहे हैं कि इलेक्शन ना हुए तो मुल्क की सलामती को खतरा हो जाएगा। मैंने कहा किस कदर, जिसके मुंह में जो आता है वो बोलता है। मुल्क की सलामती को खतरा तब होगा जब इलेक्शंस के बाद कंजर आके बैठेंगे, जो पिछले कंजर गए उनके बाद नए कंजर आके बैठेंगे और वो जो तमाशे करेंगे, जो उन्होंने जो कुछ हुआ है, जो करप्शन हुई है पिछली, अगर उनको आप नहीं पकड़ते हैं तो इसका मतलब है कि, और आप इलेक्शंस करवा देते हैं, तो पाकिस्तान की सलामती को तब खतरा होगा जब वही लोग, अब सोचने की बात है, बात से बात निकल रही है। एक बंदा, ब्लडी बंदा कहता है कि पाकिस्तान को टूटना चाहिए, अफगानिस्तान से मिलना चाहिए, अफगानिस्तान में ये है वो है, पाकिस्तान की फौज बकवास है, ये एक बंदा ये बोलता है। उसकी पार्टी को आपने कैसे हमेशा, और हाँ, और उस पार्टी का बानी जो है पाकिस्तान में दफन होना पसंद नहीं करता, तो किस तरह से, क्यों, क्या सियासी मसलतें थी कि उसको तुम लोगों ने इलेक्शन हमेशा लड़ने दिया एएनपी को? ना सिर्फ इलेक्शन लड़ने दिया बल्कि एएनपी की हुकूमतें रही हैं सूबा सरहद में। तो अब खुद सोचिए, जब हुकूमत रही है, हुकूमत होती है तो कितने कितने रास्ते दुश्मनों को नहीं दिए जाते, क्या क्या इन्होंने अफगानियों को नहीं दिया होगा, वसाइल अकोमोडेट किया होगा। तो ये कैसे मुमकिन है कि असफजान वली है दूसरा चेक रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बात करते हैं, पाकिस्तान की कौम को बगावत पे आमादा करते हैं, उठाते हैं। तो ये किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने कैसे इस पार्टी को, इनकी पार्टी को इजाजत दी, जब इन्होंने शुरू में ही, चलो कह देते हैं शुरू में बादशाह खान ने पार्टी रजिस्टर करवाई, जिसके बाद पर इसके इलेक्शन कमीशन में होना चाहिए, इनकी कागजाती नामजदगी में ये शिक होनी चाहिए कि जो मुल्क के पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के फौज के खिलाफ जिस पार्टी का लीडर बात करेगा वो पार्टी रजिस्टर नहीं होगी, और रजिस्टर हुई होगी तो उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जाएगी। ये शिक होनी चाहिए, बिल्कुल सही। और ये कागजाती नामजदगी में भी होना चाहिए कि क्या तुमने कभी पाकिस्तान के खिलाफ नारा मारा, क्या तुमने कभी फौज पाकिस्तान के खिलाफ नारा मारा, क्या कभी तुमने आइन के खिलाफ नारा मारा? अगर ये सवाल होना चाहिए। अगर झूठ लिखे पकड़ के तुम दो, अगर सच लिखे हाँ मैंने मारा, आउट कर दो। ये चीजें होती हैं ना। कि मैं बड़ा हैरान हुआ, कुछ चीजें मैंने देखी, मैंने उसको नोटिस किया था, अनबिलीवेबल है। मैंने तो, हमने तो बहुत कम चीजें मेंशन की थी ना कि इलेक्शन कमीशन की कागजात नामजदगी में चंद शिके, इन्होंने वो शिके इसके अंदर से गायब की है कि इंसान सोच ही सकता। ये इतनी बड़ी साजिश हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने वो शिके गायब किए जिससे 100% 101% हरामी पिल्ले आने वाले हैं, हरामी पिल्ले। आने वाली असेंबली हरामी पिल्लों पर मुश्तमिल होगी जो इस मुल्क को इस तरह से नोचेगी जैसे भेड़िए बकरी को नोचते हैं। ये ऐसे होने वाला है क्योंकि ना उनकी तालीम वाले होंगे ना कुछ और है। ऊपर से ड्रामेबाजी देखो जरा, एक ब्लडी, ये सुनने को क्या नहीं है, एक फ्रॉडी, असद उमर फ्रॉडी है, एंग्लो का फ्रॉडी है। क्या क्या एंग्लो से पूछ ले दुनिया, इसे कितने लाख रुपए का इसे वहां से एंग्लो को नुकसान पहुंचा के खुद फायदा लिया था, वहां ड्रामे कर रहा है। पैसे नहीं है 10,000 से तो 20,000 और इलेक्शन कमीशन अपनी पार्टी के बंदे से उन्होंने पैसे लिए बिना किसी शर्म के, और उन्होंने कहा कि देखिए मैं दे रहा हूं 5 साल में, मेरे पास तो पैसे नहीं है कि मैं जाके इसके घर में देखो तो 5-5 लाख का एक खिलौना इसने अपने औलाद को दिया हुआ होगा। ये ब्लडी, और कौन करे वाह 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 वाह। इस कौम को कौम नहीं, इसको तमाशबीर होना चाहिए। ये हर जगह पे वाह वाह करती है। जैसे हमने कहा कि चौथा में सड़क लगा तो शाबाश 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 शाबाश, तो चलो वाह वाह, नारे नारे। झूठ पे यकीन, झूठ बोलते हैं लीडर और झूठ पे नारे मारते हैं ब्लडी वेल। तो ये एक मैं बीजे मिसाल आई थी। तो किस तरह से इलेक्शन कमीशन को की भी सिक्योरिटी होनी चाहिए। सबसे पहले इलेक्शन मुलतवी होने चाहिए। ये बात हम वाशकाफ अल्फाज में कह रहे हैं बार बार, क्योंकि जो लोग भी सीटों पे बैठे हैं आज और इनके होते इलेक्शन हो गए और इन्होंने इलेक्शन कमीशन में स्क्रूटी ना की, तश्कील ना की और
पाकिस्तान के हक और पाकिस्तान की सलामती के हवाले से शिक्के शामिल ना किए तो, और दूसरे जो इलेक्शन कमीशन वो तो है, और बाकी जो लोग बैठे जो बड़े चौधरी बन के फिरते हैं, फन्ने खान बन के फिरते हैं, ये लोग याद रखें कि पायम इनकलाब में जमाल टागोर, आगा हसन तुम लोगों को इस तरह से मसलेंगे कि तुम लोगों की नस्लें याद करेंगी, इसलिए कि तुम हमारे से कोई दुश्मनी नहीं है, तुमने पाकिस्तान से दुश्मनी की। मैंने अभी जो बातें की है, जब लोग सुनेंगे इन बातों को तो वो अपना सर हिलाएंगे, पुलिस के पेशा पके नहीं, कहा ये ठीक कहा है, ये शिक्के होनी चाहिए, ये ताकि अगर ये शिक होगी तो हर वो बंदा जिससे पाकिस्तान के खिलाफ गाली निकाली होगी या पाकिस्तान को बुरा कहा होगा या उसके ऊपर कोई मुकदमा बना होगा, वो बंदा इलेक्शन लड़के असेंबली में नहीं पहुंच सकेगा। ये किसका काम है? इलेक्शन कमीशन का काम है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, ये उसके ऊपर बैठे हुए लोगों का काम है, ये उसके ऊपर बैठे हुए लोगों का काम है जिनके हाथ में अभी तो मुझे समझ नहीं आ रही जिनके हाथ में मुल्क है। कौन लोग बैठ डिसाइड करते हैं कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कौन निगरान बनेगा, कौन लोग है ये, किस सतह पे इतने खुफिया काम करते हैं ये लोग, जैसे कि ये एक कोई खुफिया मुल्क है। पता होना चाहिए कि कौन डिसाइड कर रहा है कि जफरुल मलिक साहब जो है वो सिल्वर कोटी पा के, नवाज शरीफ काली कोटी पांदा सी और चिट्टी पांदा सी, मैं कोई ऐसी कोटी कटा जो मैं बड़ा मुनफरिद नजर आऊं, मैं लौंडा नजर आऊं, ब्लाडी वाइफ। इनको इन चीजों को विरोध है। नवाज शरीफ ये लोग इन कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। नवाज शरीफ ने मुशाहिद शाह को मना करते तो शेष शिवानी ना पहना कर जब इकट्ठे थे, क्योंकि मैंने शेष शिवानी पहनी होती है, तूने पहनी होती है, तो हम लोग जो है वो फिर लोग मिक्सअप कर देते हैं। अपनी शख्सियत का इतना भी इनको भरोसा नहीं है कि वी हैव द पर्सनैलिटी। ये उसको कहा, उस दिन से मुशाहिद शाह साहब ने कहा मैं बेरंगी पालांगा लेकिन चिट्टी नहीं पानी। नवाज बाबर शरीफ को हुक्म जारी हो गया था कि शरीफ का लफ्ज हटा दो, बड्डे शरीफ आगे है, तू रंडी शरीफन है, शरीफा बीबी एक पास हो जा, बस बाबरा नाम रखो। ये वो कंजर है, वो बाबरा शरीफ है, तुम नवाज शरीफ हो, उसका फनून लतीफा है, तुम्हारा सियासत है, दुनिया जानती है। बेनजीर साहब के करतूत जो है वो बदकारी बदकिरदारी से भरे पड़े हैं, गद्दारी से। मोहतरमा लिखो, मोहतरमा, ऑर्डर जारी हो गया, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो लिखो, मोहतरमा। मतलब ये इन चीजों में लगे रहते हैं, ये इन चीजों में लगे रहते हैं। और जहां करना है कुछ इलेक्शन कमीशन में इस वक्त है, इस वक्त है। मुझे नहीं पता फौज क्या कर रही है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि अगर फौज को पाकिस्तान की सलामती चाहिए तो उसको मुदाखलत करके तो इलेक्शन कमीशन में ये चीजें शामिल करनी चाहिए। तमाशा ना देखे, ये ना समझे कि अगर ये लोग चले जाएंगे अब टर्न पूरा करके चीफ आर्मी चीफ और दीगर और ये संगे बन जाएंगे, लोग इनको जो है भूल जाएंगे कि इनको माफ कर देंगे। तारीख माफ नहीं करेगी। लोग कहेंगे जब बाजवा था, जब इलेक्शन हुए थे और गलत जो इलेक्शन के बीच में ये चीजें शामिल होनी चाहिए थी, ये तारीख का हिस्सा बन रही है। मैं और आप जो बातें कर रहे हैं ना, ये तारीख का हिस्सा बन रही है। ये हर कान जो सुन रहा है वो तारीख है, क्योंकि वो आगे से कान से सुनता है, मुंह से निकालता है, किसी और को बताता है। ये तारीख, इसको तारीख कहते हैं। कोई तारीख दान तो नहीं बैठा बड़ी सी किताब लेके दी, जमाल डाको साहब ने किया, आवाज साहब ने किया, ये करके थी, ये क्यों नहीं होता। तारीख इस से बनती है, कान से मुंह, कान से दाखिल होती है, मुंह से निकलती है, वो तारीख बन जाती है। तो मकसद मेरा जो कहने का ये कि ये हमारा मुतालबा है कि इलेक्शंस मुलतवी करो, 6 महीने में इलेक्शन कमीशन को अल्ट पल्ट कर दो। वहां पे जो शिकायत निकाली गई कागजात नामजदगी से उनको दोबारा शामिल करो। उसके बाद अब ये असद उमर साहब का अगर लिखा होता तुमने कोई फ्रॉड किया था, ये कोई मुकदमा बना था, तो ये अपने कागजात नामजदगी दाखिल नहीं कर सकता, क्योंकि ये एंग्लो का मुजरिम है। कौन फ्रॉड किए होंगे इससे, निकालने वाले चाहिए। एक मिसाल दी उसकी मैंने, इससे तो सैकड़ों है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन हर हाल में मुल्तवी होने चाहिए। पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, सालमियत, सॉवरेनिटी के लिए इलेक्शंस मस्ट बी पोस्टपोन्ड, delayed, कैंसल, and election commission should be brought to task
के ऊपर ये चीजें की जाए जिससे कि असेंबली में मुसलमान अच्छे लोग आए। जब ये शिकें शामिल होंगी तो मेरा ख्याल है सियासतदानों की 95% जो लोग हैं वो कब्रों में चले जाएंगे, वो आएंगे ही नहीं। नए लोगों को चांस मिलेगा, मुल्क बनाना है तो नए लोग आएंगे। जब सब कहीं मुकदमे हैं, सबकी फ्रॉड है, सबकी ये है वो है जो कि शिके, तो फिर वो तो नहीं वापस कागजात नामजदगी आपने दफन कर दिया उनको, सियासतदानों को उनकी सियासत दफन कर दिया। इलेक्शन कमीशन कर सकता है और नए लोग आ जाएंगे। इस प्रोसेस के लिए अगर आपको 6 महीने लग भी जाए बुरे नहीं है कि आप 6 महीने लगा के अगले 600 साल के लिए मुल्क को मजबूत कर दे, ना कि 2 महीने में हुकूमत बना के तो आगे लुटिया डुबी लो। सही बात। ये मेरा एक हमारा कहने का मकसद था। उसके अलावा हाँ, जो बात कहना चाहता हूँ, जो तुम्हें दुख हुआ था कि वो कोई बेचारी बच्ची है खदीजा सिद्दीकी, उसके, ये मैं अदलिया के ऊपर भी बोलूंगा थोड़ा सा। सरदार नाम है जी, जस्टिस सरदार अहमद नईम या नसीम है जो भी है, खदीजा सिद्दीकी बच्ची को एक कुत्ते की औलाद ने, वकील कुत्ते की औलाद ने 23 छुरियां मारी। मासूम बच्ची को 23 छुरी, कुछ सो नहीं सकता है, जिस्म का कोई हिस्सा बच सकता है 23 छुरियों के बाद, छुरियों के वार के बाद? WWF का पहलवान भी होगा, उसको भी 23 छुरी मारा जाएगा। बच्ची को मारी, उसके नसीब तो बच गई। तो मकसद कहने का ये है कि उस जस्टिस ने, सरदार ने, एक तो भी कहा बड़ी अदालत में बच्ची को कि अपने जिस्म के जख्म दिखाओ। जस्टिस सरदार, ये बड़ा हरामजादा है भाई, कि तुम एक हरामजादे हो, बहुत हरामजादा है बहन चोद, बहुत हरामजादा जी। तुमने एक बच्ची को कहा जिसके जख्म जिस्म के, बड़ी अदालत में कहा दिखाओ, एनिमल, ये कुत्ते का बच्चे हैं। सुने, हम कह रहे हैं जस्टिस सरदार एक कुत्ता है और हम इसको मौत देंगे क्योंकि ये बास्टर्ड है। इसने उस छुरिया मारने वाले को, कुत्ते को छोड़ा है क्योंकि वो किसी कुत्ते वकील का है और उसके पैसे लिए, या फिर ये बताए, मैं जस्टिस जाकिर निशान हो कहता हूं तो उससे एक्सप्लेनेशन लेके तुमने किन, उसकी फाइंडिंग्स ले कि किन फाइंडिंग्स के ऊपर तुमने इसको, बंदे को छोड़ा है। हाँ बिल्कुल सही है। ये अगर तुम्हारे घर में कोई बच्ची है, कोई बेटी है और नहीं चाहते कि कोई चढ़े उसके ऊपर कल को, तो याद रखो, तुमको कत्ल करे कोई तो याद रखो, कुत्ते, उस बच्ची को जस्टिस दो, उस कुत्ते को वापस अंदर बंद करो। यू ब्लडी जस्टिस सरदार। आई नो ये वीडियो उस कुत्ते का सरदार तक पहुंचेगी, याद रखो हमारी शके जैसे बूथे के ऊपर हम आकर बहुत लफ्ज भाषण करेंगे, बड़े कि तुमने एक बच्ची को इंसाफ नहीं दिया। तुम लोग अदलिया को रंडी बना दिया, तुम लोगों ने दक्षिणी बना कर रखा, तुम लोगों ने अपने बाप की जगह समझो, तुमने इसको सियासतदान आते हैं हुकूमत को रंडी बना देते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आते हैं वो पाकिस्तान को रंडी बना देते हैं, जस्टिस कुत्ते आते हैं वो अपने अदलिया को रंडी बना देते हैं। फौरी तौर पे उसको दोबारा बंद करो अंदर, उस बच्ची को इंसाफ दो। ये हमारा मुतालबा, ये भी रिकॉर्ड में रखा जाए हमने। और ये भी कहो कि उस बच्ची को अगर कुछ हुआ तो इन दोनों को, उस एडवोकेट को और उस हरामजादे को जो कुत्ते का बच्चा है दल्ला जज जो है, इनकी फिर हमारी इनकी छिकाई बहुत होगी हमारे हाथों। बिल्कुल आपने कह रही है, बिल्कुल इसको आपने लाउड एंड क्लियर कह रही है कि अगर उस बच्ची को कोई हुआ, कोई ऐसी क्या कहते हैं उसके साथ कुछ जाती हुई, क्योंकि इस कुत्ते ने इसको छोड़ दिया है, उसकी जान को खतरा हुआ और कभी कुछ हुआ, तो ये रिकॉर्ड पे रहे कि ये जस्टिस जो है चाह देंगे हम इसको। हाँ, इसलिए कि हमें हर वो गुनाह जो पाकिस्तान में कर रहा है, हर वो जालिम जो पाकिस्तान में कर रहा है, वो हमारी आंखों से हटा नहीं है, हमारी आंखों के सामने है। जैसे कि मिसाल है, याद है जिन 2 बच्चों को इन्होंने मार के मार दिया था और वो बदमाश आज भी खुलेआम फिर रहे हैं, समझे ना? याद है आपको? के जो थे 2 भाई, सियालकोट के जो भाई थे,
उनके बारे में आज तक हमको याद है। उनका जो जजेस थे या उनके जो उनको जिन्होंने रिहाई दी या जो भी हुआ जिसे उसका भी हिसाब किताब जब मिलेगा, जब हमें वो याद है तो हमें हर मजलूम की बात याद है, हर मजलूम। ये बताया जाए कि 2 भाई जो सियालकोट में मारे गए थे उनके कातलों को फांसी मिली या नहीं। हाँ, ये बताया जाए ज़ैनब का जो कातिल या जो भी पकड़ा गया है ज्यादती करने वाला, जो मेरी नजर में इन्होंने सिर्फ लम्हा चढ़ाया, वो असल में वो हो ही नहीं सकता। कुछ लोगों को बचाने के लिए उसको उन्होंने स्केप गोट बनाया। उसकी बूथ ही नहीं है रेप करने वाली, उसकी शक्ल ही नहीं है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही नहीं बोलती। हाँ। फिर इन्होंने क्योंकि लोगों का जो गुस्सा था खत्म करने के लिए कहीं से मुंडा पकड़ के उसको पता नहीं क्या किया उसके साथ, कि उसको मनवा लिया कि मैंने किया था, तो मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। मगर इसके बीच में कोई बड़े लोग शामिल थे जिनका नाम मिटाना था, उसको जान का खतरा करके उन्होंने किया होगा। इसलिए मैं नहीं मानता कि वो लड़का जो है, तो इसलिए चलो अगर वो है बिलफत उसको कभी फांसी मिली कि नहीं मिली। उसके अलावा मिशाल खान के कातलों का क्या हुआ, उसके अलावा जो बच्ची डॉक्टर को मारी थी, मिशाल खान के लोगों को पीटीआई के कंजरों ने मारा था, और वो जो बच्ची डॉक्टर मारी गई थी पिछले दिनों, और वो लड़का लौंडा भाग गया था दुबई कुत्ता। समझते हैं बाहर के मुल्क में बड़े, बाहर के मुल्क चाल में अकड़ टिकाने आ गई ये बदमाशी पाकिस्तान में जल्दी, बाहर के मुल्क में तुम लोगों को कोई टट्टी साफ करने के भी नहीं पूछता पड़ो। तो वो उसका क्या बना। उसके अलावा और बहुत सारे वाकयात हैं जो कि हमें याद नहीं है। हाँ, उस बच्ची का जो बावेला किया था उसको क्या किसी ने दादर से की। इस सब बेशुमार वाकयात हैं बच्चियों के क्या, और बच्चियों के अलावा आम तौर पे भी बेशुमार वाकयात। हाँ, वो लड़का जो है जिसने वो मार दिया था, शाहजेब को मारा था, वो लौंडा किधर है, वो किन बुनियादों पे छोड़ा गया था। इस तरह और बेशुमार। हाँ, ये खोसा का जो लौंडा है इसने जो कासा को कत्ल किया था उसका क्या बना। हमजा का आयशा आहद को लिटा के टांगे उठा के उसके बाद दूसरी औरत की टांगे उठाने लग पड़ा जाकर भौसड़ी का, इसको किसी ने फाइल दिया, इसका उस औरत को कोई दिया इंसाफ। इस तरह बेशुमार वाकयात हैं जो कि जिनमें एक सजाएं भी हो चुकी है और कुछ अंडर इन्वेस्टिगेशन है कि अदलिया ने क्या किया। उन लोगों का खास तौर पर जिनका हमने जिक्र किया, उन लोगों के साथ क्या हुआ, कि उनको फांसियां मिली, अगर नहीं मिली तो अदलिया जो अपना मुंह लपेटे और सरदार के चूटों में दे दे, क्योंकि वो इसी काबिल है ऐसे कुत्ते जस्टिसों के चूटों में दर्द देने के लायक है अदलिया। और जो शबनम के कातिल हैं, जो कातिल कह रहा हूँ, जो जिन्होंने रेप किया था उसके मियाँ को कत्ल, उसके बारे में बता दो, आप कह दो जी। और जो शबनम वाला वो है, हाँ, ये कितनी मजे की बात है ना, कितना खूबसूरत लगता है। दुनिया का सबसे नेक आदमी, सबसे ऑनेस्ट आदमी, सबसे पाक आदमी है जी, वो अल्लाह ताला से बातें भी करता है। अब तो है जी, अल्लाह ने उसको नबी के तौर पे तैयार कर रहा है जी। अल्लाह में ऊपर बैठ के देख रहे हैं, ये आदमी सबसे बड़ा जानी है, ये औरत के बिना और ज़िना के बिना रहता नहीं है, शराब ये पीता है, बदमाशी ये करता है, सब कितना प्यारा है, इसको मैं नबी की जगह दे देता हूँ। इनकी बातों से ये लगता है वो शख्स, देखिए मैं क्या बोल रहा था, बड़ी तमीज भी होगी थी, मैं कुछ कहने लगा था, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा था इसके साथियों के हवाले से, इमरान खान की। हाँ, शबनम के बारे में बात हो रही थी। हाँ, राइट। अब उसके बंदे जो हैं, क्या हुआ जी, अयाज अमीर ने एक बच्ची को बुला के नौकरानी को शराब के नशे में उस पर चढ़ गया है जी। वो गरीब लोग खामोश रह गए, ये बड़ा आदमी मरवाना दे। शबनम के जो हैं रेपिस्ट जो हैं वो अपना सजाए मोते पा गए, और उसके बाद दबाव दबूर डाल के बाहर निकल गए, और वो जो है वो भी पीटीआई में आ गए, अयाज अमीर भी आ गया, और दीगर जितने भी वो जो है, नहीं मिला तो बेचारा वैसे ही मैं उसको देख के तरस आता, वो इतना बड़ा ठरकी किस्म का वो है, बैचलर है कि इसको जो है ना, क्रॉनिक बैचलर भी छोटा लफ्ज है उसके लिए। वो बेचारा वैसे ही मिस्टेक में इसी क्रॉनिकल सिचुएशन लोगों को थप्पड़ मारता फिरता है, इसकी हालत होगी इनकी। बहरहाल आई एम जस्ट किडिंग। तो मकसद मेरा कहने का ये कि शबनम के जो लोग हैं वो उनको सजा हुई थी, ये पहले किसी ने कहा था, तो उनको सजा हो गई थी और उनको सजा बहुत हुई थी। बाद में इनका कॉम्प्रोमाइज हो गया था, जिसकी वजह से वो आजाद हुए। और ये नहीं है कि उसका केस कहीं फाइलों में दब गया या कुछ इस तरह से हुआ और वो बात फिर तरह ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने मिल मिला के वो केस को खत्म करवा दिया
भाई जी कि पीटीआई में रिकॉर्ड है, पाकिस्तान का रिकॉर्ड है कि फरिश्ते की पार्टी में फरिश्ते फरिश्तियां, वो शेर ते शेरनियां, ठीक है, पीटीआई कहेंगे फरिश्ते ते फरिश्तियां, वो हर एक अपना पीपल्स पार्टी वालों को कुछ और नहीं कहते, जाले ते जालियां, लाइक दैट। तो चौधरी बेचारों को आगे पीछे कोई नहीं, उन्हें क्या बोलते होंगे पता ही कोई नहीं। तो बहरहाल मकसद कहने का ये कि अब मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और ये इस बात को हम क्लियर करते हैं कि इंसाफ होना चाहिए पाकिस्तान में, इलेक्शन मुलतवी करो, जिन लोगों को जो लोग ज्यादतियों में हुए हैं, क्या कहते हैं, कन्विक्टेड हुए, और लोगों को फांसियां दो और दर्दनाक सजाएं दो, और जो बच्ची के साथ ज्यादती की जैसे सरदार ने, उस सरदार से साकिब ने साथ पूछे कि तुमने उसकी फाइंडिंग्स ले कि इसने किस किन बुनियादों के ऊपर उसको छोड़ा है, और उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। उसकी हालत क्या होगी बेचारी की जब ये देखे। कोई इंसान अपने आप को उस जगह पर रखे तो सोचे क्या तकलीफ है, कोई दही सवार छुरी के खाने को आसान काम नहीं होता। तो हमारा बस इतना कहना मकसद है। पाकिस्तान अवामी इंकलाब मूवमेंट पायम का मंशूर का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो जमात ठाकुर साहब ने पढ़ा, आपने सुना, और उसमें जो है बूढ़ों के लिए, औरतों के लिए इज्जत नफ्स के साथ जीने की पूरी हम देंगे, उनको मौका देंगे, उनके लिए कवानीन बनाएंगे, और उन लोगों के जो है खास तौर पर ख्वातीन के जो एबिलिटीज हैं, हम उनके ऊपर भरोसा करेंगे और उनको अच्छे जॉब्स उनके लिए मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, और बूढ़ों को भी करेंगे। उसके अलावा मुझे याद नहीं है जमाल साहब ने क्या पढ़ा होगा, लेकिन जो है जो भी उन्होंने पढ़ा है वो 100% हम लोग करेंगे। अगर आप चाहते हो तो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। हाँ पढ़ दोबारा, बल्कि अच्छा है, तो लोगों को थोड़ा सा ना वो हो जाएगा, अगर लंबा नहीं है तो नहीं। उसका मंशूर का जो पढ़ के लोगों को मदद नहीं हो रही है, लोगों ना पता। हाँ, मंशूर का जो है ना, यहाँ पे आप ना इसको बुला ले ना, फिर अपना ऐश्वर्या राय बुला के बुला ले, ये सारी रात बैठे रहेंगे दुनिया देखने के लिए। उसकी आपकी बात करेंगे तो इनको नींद आ जाएगी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं सोच रहा था कि एंड करता हूँ, मैं दोबारा से मंशूर पढ़ता हूँ जो कि एक हिस्सा है हमारा, आपको पता है तो बहुत लंबा, लेकिन चंद एक जो लाइनें हैं वो मैं पढ़ देता हूँ दोबारा से। उसके बाद फिर हम इसको जो क्लोज करते हैं, फिर अगली जो है जो वीडियो होगी उसके ऊपर मुकम्मल बात करेंगे, ठीक है ना। तो मैं एक दफ़ा फिर इस अपने मंशूर को पढ़ देता हूँ। एक दफ़ा लोग जो है ऑनर एयर चला जाए, शुरू में ही पढ़ दिया था, आखिर में पढ़ देता हूँ कि लोग अगर मिस कर रही है तो वो दोबारा से एंड में जो है उसको सुन ले, ठीक है ना। अच्छा आप सुनो। मैं चेयरमैन पाकिस्तान अवामी इंकलाब मूवमेंट पायम जमाल ठाकुर फ्रांस से, और प्रेसिडेंट आगा हसन सैयद पाकिस्तान अवामी इंकलाब मूवमेंट पायम जर्मनी से। मैंने मंशूर का ये हिस्सा पहले पढ़ा था, बहुत सारे लोग बीच में आए होंगे और जिन्होंने ऑन किया है, जो बगैर ऑन होके देख रहे हैं, छुप के देख रहे हैं, वो भी देखें, और जो छुप के नहीं देख रहे वो भी देखें। तो इस मंशूर का जो हमारा एक छोटा सा हिस्सा है, पर सारा तो नहीं पढ़ सकता क्योंकि इट्स वेरी लॉन्ग, तो इसको मैं दोबारा से पढ़ता हूँ, तो इसको आप लोग सुने, उसके बाद फिर मैं इसको बंद एंड कर दूंगा। तो ऐसे है कि पाकिस्तान अवामी इंकलाब मूवमेंट पायम, अजीज हमवतनों, हमने अवामी इनकलाब की बुनियाद रख दी है। पाकिस्तान का हर शहरी इस इनकलाब के समुंदर की तेज मौज है, जो हर उस शख्स को जिसने गुज़श्ता 71 बरसों में मुल्क को किसी भी शक्ल में नुकसान पहुंचाया है, गर्क कर देगा। हर पाकिस्तानी इस इनकलाब के सैलाब का तूफानी बहाव है, जो अपनी अवामी कुव्वत और रोज से ऐसे तमाम अनासर को बहाकर ले जाएगा जिन्होंने अपने ओहदों और मुनासिब और अयाशियों का नाजायज फायदा उठाया, यानी कि अपने ओहदों का और अपनी हैसियतों का नाजायज फायदा उठाया, जिसके बायस अमीर तर अमीर होते चले गए और गरीब तर गरीब होते चले गए। जनरलशाही हो या नौकरशाही हो, पेशावर मजहबी अनासर हो या मौका प्रस्त सियासतदान,
کرپٹ حکومتی اہلکار ہوں یا زرد صحافت کے علمبردار، تاجر صافی، ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچانے والے کاروباری طبقے ہوں یا جاگیردار اور غنڈہ عناصر، عوامی انقلاب سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ ملک دشمن بدعنوان عناصر کو سرے عام پھانسیوں پر لٹکایا جائے گا اور ایک نئی تاریخ رقم کی جائے گی۔ موقع پرست سیاستدانوں اور قوم دشمن سیاسی جماعتوں اور نیم سیاسی تنظیموں کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے گا۔ غنڈہ عناصر کا کلا کما کیا جائے گا، بڑے چھوٹے کا فرق مٹا دیا جائے گا۔ انصاف سستا اور آسان بنیادوں پر فراہم کیا جائے گا۔ ناانصافیوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ بیرونی ملک ہم وطنوں کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ طلباء کو ہر قسم کی سہولت دی جائے گی۔ ملکی امور میں غیر ملکی آقاؤں کا عمل دخل ختم کیا جائے گا۔ خواتین کو عزت، تکریم اور تحفظ ملے گا۔ قانون کی بالادستی ہوگی۔ امیروں، ٹیکس چوروں سے ملک کی خزانے سے لوٹی گئی رقم کا بالحاظ حساب لیا جائے گا۔ ناجائز جائیدادیں، دھن دولت ضبط ہوں گی۔ زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق بد کردار اور بد عنوان افراد کا محاسبہ کیا جائے گا۔ عوامی انقلاب ہر اس شخص کو پھانسی اور گولی دے گا جس نے کسی بھی شکل میں ملک کو نقصان پہنچایا ہوگا۔ عوامی انقلاب پاکستان کی نئی نسل کے روشن مستقبل کا انقلاب ہوگا۔ نئی نسل فرسودہ اور آزمائے گئے سیاسی و نیم سیاسی عناصر اور جرنیل شاہی کو مسترد کرتے ہوئے نئے پاکستان کی بنیاد رکھے گا، جہاں ہر کوئی صرف پاکستانی ہوگا، جہاں صرف پاکستانی ہوگا۔ ون یونٹ پاکستانی، ون یونٹ پاکستانی۔ صوبائیت ختم کر دی جائے گی۔ کوئی سندھی، پنجابی، پٹھان، بلوچی نہیں ہوگا، بلکہ صرف پاکستانی ہوگا۔ پاکستان کی نئی نسل عوامی انقلاب کے ذریعے اپنے لیے مستقبل اور نئی روشن راہوں کا انتخاب کرے گی۔ عوامی انقلاب ایک نئی تاریخ رقم کرے گا۔ انڈسٹریاں لگیں گی، ہسپتال بنیں گے، تعمیری ادارے بنیں گے، تعلیمی ادارے بنیں گے، ٹیکنیکل ادارے بنائے جائیں گے، زراعت کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا۔ نوکرشاہی اور حکومتی آقاؤں کو عوام کی غلامی میں دیا جائے گا۔ ہر شخص کو روزگار اور ہر بے روزگار کو بے روزگاری الاؤنس دیا جائے گا۔
ملک کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا جائے گا. ملک کی خزانے سے لوٹی گئی دولت واپس لے کر ملک کی ترقی پر خرچ کیا جائے گا. اقلیتوں کو عزت نفس کے ساتھ جینے کا موقع ملے گا اور ہر بوڑھے پاکستانی کو پینشن دی جائے گی. معذوروں کے لیے سہولیات و امارات کا انتظام کیا جائے گا. اور پاکستان کی تعمیر و نو ہمارا نصب العین ہے. پاکستانیوں، غور سے اس چھوٹے سے منشور کو دوبارہ سنو اور اس پہ غور و فکر کرو. پاکستان عوامی انقلاب ملپائم. میں چیئرمین پاکستان عوامی انقلاب ملپائم فرانس سے اور چیئرمین اور پریزیڈنٹ آغا حسن سید جرمنی سے. آپ نے کچھ کہنا ہے یا میں اس کو آف کر دوں؟ اوکے، بند نہیں کرو، ابھی آپ سے میں بات کرتا ہوں. اوکے ایوری باڈی، ہیو اے گڈ نائٹ. خدا حافظ، شب بخیر.